Empowering women, empowering the world. Our slogan rejoins with today's webinar series third day on women and law organized by Vidik Sahayata and Nani Palkiwala National Law Club. This event brings together legal expertise and support. Nani Palkiwala National Law Club, a pioneer in promoting legal awareness and excellence, and Vidik Sahayata, a trusted name in legal support and guidance, have come together to bring this opportunity to you all participants. Today's web lecture on property rights for women in India. Women's rights to ancestral property under Hindu Succession Act 1956, right of women in marital property, protection of women's property rights under Domestic Violence Act 2005, women's right to inheritance and succession, recent landmark judgment and updates, etc. Now, I would like to extend a warm welcome to our esteemed speaker, Advocate Jayaprakash Bansilal Somani. An advocate at the Supreme Court of India with over 3 decades of distinguished legal practice and author of 65 plus books on Supreme Court case law. Founder of JSS Law Firm, he leads a team of 16 associates, including 6 AORs. And our respected CEO, Dr. Priya Thakur, a champion of women's empowerment, leading Sahayata Foundation and working with multiple NGOs to promote women's achievements. Her tireless efforts inspire us all. Along with all participants, you are the driving force behind this webinar. Welcome to our speaker. Welcome, sir. Thank you. Thanks for your nice introduction, Shruti. Audience, Shruti Kriti is my associate as well as practicing lawyer in Supreme Court of India. She is a designated partner in JSS Supreme LLP, Supreme Legal LLP. And whenever anybody want to connect with me regarding Supreme Court matters, they can connect to Shruti Kriti, and through Shruti Kriti, they can connect to me. They can take my advice also. So let's start today's subject. Just give me a few seconds. I will take that some notes in front of me, and then I will initiate this program. Yes. So, friends, today's program I will cover in 12 to 13 short subtopics. So, property rights for women in India, a legal framework, relevant sections, and leading case laws I will cover. भारत में श्री के राइट्स क्या है, प्रॉपर्टी में राइट्स क्या है? श्री बोले तो खाली हिंदू श्री का है ऐसा नहीं है. मुस्लिम श्री के लिए क्या राइट्स है, क्रिश्चियन के लिए क्या राइट्स है, ऑल टाइप ऑफ पारसी श्री के लिए क्या राइट्स है, तो ये सब कुछ हम इसमें देखेंगे. सो प्रॉपर्टी ओनरशिप इज अ critical component of economic independence and social empowerment for women. Unless and until women have the property rights properly, they, unless and until they have the absolute ownership of that property, their economic independence and social empowerment was not successful. To get it successfully, so Parliament has done nice things. Supreme Court has done nice things through their leading case laws. Historically, women in India faced a significant discrimination in matters of inheritance and property ownership due to patriarchal customs. So, पैतृक कस्टम जिसको हम बोलते हैं पैट्रेंशियल, भाई मेन को ही ज्यादा राइट्स है, वुमन को कम है, ये जो मेंटालिटी है. So through that mentality, woman has suffered significant discrimination. But nowadays, time is changed. Over time, the Indian Constitution, statutory reforms, and judicial interpretations by Supreme Court of India have progressively strengthened women's rights, property rights. So property rights of women in India are governed by
personal laws, Hindu law, Muslim law, Christian law, Parsi laws. Then second, statutory laws. Third, these property rights are governed through constitutional protections. And fourth, through judicial precedents. These laws regulate inheritance. Inheritance means parampara se chale aana, that is called ancestor property from ancestor to legal heir. That is called inheritance, ownership, then maintenance, then matrimonial property rights, then residential rights. So this is a little bit sort of summary in first part. Now I am leading towards second part. Constitutional framework protecting women's property rights. वुमन के प्रॉपर्टी राइट्स प्रोटेक्शन करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या फ्रेमवर्क है, कौन से आर्टिकल्स में क्या दिया है. आई वॉन्ट टू एलेबरेट दिस पार्ट इन शॉर्ट सम with articles. Article 14 of Constitution of India, equality before law and equal protection of laws. Then Article 15(1) prohibits discrimination on the ground of sex. So male, female, such type of discrimination is prohibited under Article 15(1). Article 15(3) allows special provisions for women and children. Specifically याद रखना, for women and for children, Article 15, subclause C. Then Article 21, protection of life and personal liberty, including dignity and livelihood. And Article 300A, this is special property rights as a constitutional legal right. Before amendment of the Constitution, property rights were fundamental rights under Article 31. But after amendment, property rights in India now are constitutional legal rights. They are not in fundamental rights now. So whenever you are thinking about the property rights in Constitution, article is 300A. These provisions have been interpreted by the Supreme Court of India to strengthen women's property right. भारत के संविधान ने बहुत अच्छी तरह से इसको किया है और सुप्रीम कोर्ट हैज interpreted in well manners. Again, I will elaborate with it some case laws also. Third part of my today's presentation is Hindu Succession Act 1956. Hindu Succession Act 1956 amendment of 2005 is very, very important. The Hindu Succession Act 1956 governs inheritance among Hindus, Buddhist, Jain, and Sikhs. Hindu Succession Act is applicable to Hindus, Buddhist, Jain, and Sikhs. The 2005 amendment revolutionary explained women's inheritance rights. So what are the some important sections of this? Section 6, co-partnership rights. The Hindu Succession Amendment Act 2005 granted daughters equal rights in co-partnership property. Suppose 5 sons are there, 3 daughters are there, mother is there, and if father is not in this world, and after that, if they dead without testimony, without will, intestate, so that time, so 5 sons, 3 daughters, and mother. So all now are all equal co-partner after this amendment. Before this amendment, women, daughters are not equal co-partner. But due to this amendment, all are equal co-partners in co-partnership property.
Now, daughters have equal birthright in ancestral property. Birthright. As soon as she took birth, she established her right in ancestral property. Even though in future she is married or unmarried, it makes no difference. लेकिन ये डाइजेस्ट होने में अभी भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है लोगों को. लोग अभी भी पार्टीशन करते समय वुमेन को साइड को रख के भाई 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 लोग के ही बांट ले रहे हैं. बट नाउ दे आर गेटिंग अवेयर एंड दे आर कमिंग फॉरवर्ड. और फिर वो कोर्ट में चैलेंज करता है, फिर वो सब कोर्ट से सेट एसेट होता है, फिर कोर्ट वापस रियरिंग करके देन कोर्ट डिसाइड टू डिस्ट्रीब्यूट इट. सो दिस इज माय हम्बल अपील ऑन द occasion of the International Women's Day. This we are celebrating that in through 5 different webinars through Vidik Sahayata and our Nani Palkiwala National Law Club. I am appealing to all our India's brothers. Take NOC from your sisters, give them proper their share, so that will be unbelievable. If they are well, they don't want any share in father's estate, they are well settled in their life, specifically sisters. So take their NOC, no objection, and then do the partition. Then nobody can challenge that into the court. But it is always good to give female equal co-partnership right as per amendment of 2005 in Indian Succession Act 1956. So equal birthright in ancestral property, same liability as a son. तो याद में रखना कि जितना प्रॉपर्टी में अधिकार डॉटर को है उतना अधिकार लाइबिलिटी में भी है, नॉट अधिकार ड्यूटी इन लाइबिलिटी. सो इफ एनी सिविल लाइबिलिटी फादर हैज लेफ्ट, that civil liability should also be bear equally by daughters as sons. Right to demand partition. पार्टीशन का डिमांड पहले खाली सन कर सकते थे. नाउ डॉटर्स कैन आल्सो डिमांड फॉर पार्टीशन. सो दीज आर मेजर चेंजेस इन सेक्शन 6 regarding co-partnership rights as per Hindu Succession Amendment Act 2005. What section 8 elaborate? General rule of succession. Provide a rule for distribution of property of a male Hindu dying intestate. Intestate means without will. इसलिए कभी भी याद रखो, विल करके रखना चाहिए. भाई हम अभी कहा बूढ़े हो गए, व्हाई विल इज नेसेसरी. श्रुति, नोट डाउन दिस पॉइंट एंड रिमाइंड मी. वी विल टेक अ सेपरेट वेबिनार ऑन विल, how to prepare will, how to get it registered, what precautions we should take. ओके. और विल के बाद विल अगर दूसरा चेंज करना है, अमेंड करना है, उसके क्या प्रोविजंस है, उससे रिलेटेड केस लॉज. मेरे पास कितने केसेस आते हैं यार. नंबर 1 पे सर्विस मैटर रहते हैं, नंबर 2 पे प्रॉपर्टी मैटर्स रहते हैं, कॉर्पोरेट मैटर्स रहते हैं. देयर आर सो मेनी केसेस इन सुप्रीम कोर्ट थ्रू आउट द इंडिया. सो वी आर हैंडलिंग दिस टाइप ऑफ केसेस. और हम देखते हैं खाली अवेयरनेस नहीं रहता है, प्रॉपर गाइडेंस नहीं रहता है, इसलिए लोग फंस जाते हैं. सो विल के ऊपर भी हमको एक सेपरेट सेशन लेना चाहिए, एंड आई विल एलेबरेट एवरीथिंग रिलेटेड टू द विल. और विल करने के लिए कोई उम्र की मर्यादा नहीं है. भाई बूढ़ा होने के बाद विल करो, नो. आप यंग है, आपके पास प्रॉपर्टी है, विल करके रखो. आप जब आपको चेंज करना है विल, यू चेंज इट. दूसरा चेंज किया विल, उसको रजिस्टर करो, पहला विल अपने आप कैंसिल हो जाता है. Then subsequently, if you want to change again will, you can do the new will. Automatically earlier will be cancelled. ये सिस्टम से चलो. लेकिन विदाउट विल अगर जाता है, और अगर आपके लीगल हेयर अगर वाइज नहीं है, तो झगड़ते बैठते हैं.
और प्रॉपर्टी के लिए झगड़े कितने चलते हैं मालूम है? मेरे पास है ना, आई हैव टू केसेस. दैट केस वाज स्टार्टेड बाय देयर ग्रैंडफादर इन ट्रायल कोर्ट, एंड नाउ ग्रैंडसन इज इन सुप्रीम कोर्ट. ग्रैंडफादर ने स्टार्ट किया हुआ केस, ग्रैंडफादर चले गए, फादर चले गए, फादर के बाद सन चला गया, सन के बाद ग्रैंडसन लेके आया मेरे पास केस. क्या मिलता है बताओ? हम्म? चार चार जनरेशन खाली लड़ने में ही चले जा रहा है. मेरे काफी वीडियो में मैं बताता हूं, अभी भी बताता हूं, कि कोर्ट में आना अवॉइड करो. यस यस यस, आई एम अ लॉयर. इवन तो आई एम इंसिस्टिंग यू, ऑडियंस, डोंट इन्वॉल्व इन एनी लिटिगेशन. अगर लिटिगेशन जाना का चांस दिखता है तो उसको सेटल कर लो, पहले कॉम्प्रोमाइज कर लो, डायलॉग रखो, बैठो, मेडिएशन करो. कोर्ट में आने से बचो, क्योंकि कोर्ट में आने के बाद दोनों पार्टी हैरेश होती हैं, पेटिशनर साइड आल्सो, रिस्पोंडेंट साइड आल्सो. फायदा खाली लॉयर लोगों का होता है, दोनों पार्टी. एंड प्रॉपर्टी मैटर में तो कितने 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 हैं. ऐसे कुछ कुछ प्रॉपर्टी मैटर आते हैं ना, दो सर दुखने लगता है मालूम है. फिर मैं किसी जूनियर को पकड़ता हूं, मैं बोला भैया ये ले का केस यार, इसका मुझे ट्री निकाल के दे पहले, किसके कितने बच्चे, किसके कितने बच्चे, इसकी फिर दो वाइफ, इसकी तीन वाइफ है. और अदर देन हिंदू कोई प्रॉपर्टी मैटर आ जाता है ना कुछ, जहाँ पे चार चार बीबिया करने का अधिकार है, ऐसे तो उसमें तीन तीन चार चार बीबिया, उनके फिर बच्चे, ये वो सब ट्री, ट्री निकाल के फिर वो ट्री का स्टडी करके, फिर उसके पॉइंट स्टडी करके, फिर ड्राफ्टिंग करके, फिर पिच में का पूरा की पूरा अपग्रेडेशन टेस्ट करके फिर वो केस ड्राफ्ट करना पड़ता है. इट इज वेरी टेडी जॉब, बट वी आर डूइंग दैट, नो इशू. लेकिन अगर आप कोर्ट में आने से बचते हैं तो आपका फोकस जो होता है ना दोस्तों, ये प्रोडक्टिविटी आपकी अच्छी रहती है. कोर्ट के कारण आपकी प्रोडक्टिविटी हैमर होती है, और मुझे भारत की प्रोडक्टिविटी हैमर करके पैसा कमाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है. आई एम नॉट अ लॉयर हु इज inclining the litigations, increasing the litigations. I am a lawyer who is declining the litigation in India. मैंने कभी भी जिंदगी में किसी को झगड़ा करने का सलाह कभी नहीं दिया. मैंने झगड़ा खत्म कैसे करता है इसके ऊपर ही फोकस किया, इसलिए मेरा फोकस आज भी सुप्रीम कोर्ट में वही है. मेरे पास मैटर आने के बाद जितना जल्दी की जल्दी मैं इसको, एक क्लाइंट को इसमें से फ्री कर सकता हूँ उतना देखता हूँ, क्योंकि क्लाइंट फ्री होने के बाद जो दुआएं देता है ना, वो दुआएं बहुत अच्छी काम करते हैं. इसको अभी के आपके एआई के लैंग्वेज में बोलना है तो बहुत अच्छे रिव्यूज आते हैं हमारे अकाउंट्स में. रिव्यू के लिए नहीं, लेकिन अंदर के सेटिस्फेक्शन के लिए, हमारे सोल के अंदर जो कृष्णा बैठा है, राम बैठा है, इसको, इसके कारण, इसके लिए, इसके सेटिस्फेक्शन के लिए हमको अच्छा लगता है. काम पूरा ईमानदारी से करना बहुत अच्छा लगता है. जब भी हम आईने में देखते हैं ना, तो खुद के नजर से कभी नहीं गिरना चाहिए आदमी ने, ये याद रखना. इसलिए फीस रिजनेबल चार्ज करता है, सब कुछ रिजनेबल करना पड़ता है, तब जाके फिर खुशी से जब वो जीतता है तो खुशी से अच्छे पैसे दे देता है, कोई इशू नहीं है. सो इन शॉर्ट आई वांट टू टेल यू, if anybody is dying with testimony, with proper will, then his distribution of that particular properties may be movable, immovable properties. विल में हम मूवेबल, इमूवेबल सब प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, सब प्रॉपर्टी का उल्लेख कर सकते हैं. तो फिर सही ढंग से वो होता है. यू कैन अपॉइंट अ मैनेजर टू डू दिस. आपका कोई फ्रेंड है जो आपसे 10 साल, 15, 10 12 साल यंग है, जिसके ऊपर आप विश्वास कर सकते हैं, उसको आप मैनेजर बोल के अपॉइंट करो. और अल्टरनेटिव रखो भाई, ये मैनेजर रहेगा, अगर ये नहीं रहता है उस समय तो फिर ये मैनेजर रहेगा. और ऐसे अल्टरनेटिव भी रख सकते हैं, कंडीशनल भी रख सकते हैं. सो विल टेक सेपरेट प्रोग्राम ऑन दैट. So, Section 8 General Rules of Succession provides rules for distribution of property of a male Hindu dying intestate. Section 14 जो है
property of female Hindu. Any property possessed by a female Hindu becomes her absolute property. This is a clear cut manifestation of this section 14, including property acquired through. जो भी प्रॉपर्टी वुमन के पास आती है उसके पास उसका एब्सोल्यूट राइट है। पहले नहीं था ये। पहले वुमन जब तक जिंदा है तब तक वो उसको राइट रहता था। वो जाने के बाद वो अपने आप ही भाइयों को या पिता के पास चली जाती थी प्रॉपर्टी। बट नाउ फीमेल हिंदू हैव एब्सोल्यूट ओनरशिप इन प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग इनहेरिटेंस, गिफ्ट, मेंटेनेंस और परचेस। उसको अपने एंसेस्टर से आई हुई प्रॉपर्टी रहो, इनहेरिटेंस, गिफ्ट में आई हो, पिताजी शादी के समय कुछ गिफ्ट देते हैं वो गिफ्ट से हो, मेंटेनेंस आया हुआ हो, और if she have purchased that property in any form, प्रॉपर्टी अगर हिंदू फीमेल के पास आती है so she have absolute ownership of that property. This is very good manifestation under section 14. Section 15, succession to property of female Hindu, provides the order of heir for property of a woman dying intestate. अभी तक हमने क्या किया, अगर पिताजी चले गए या पति चला गया तो वुमन को इनहेरिटेंस कैसा मिलता है, क्या मिलता है, उसका एब्सोल्यूट ओनरशिप कैसा है, क्या है, ये सब देखा। बट सेक्शन 15 स्पीक्स एंड प्रोवाइड द ऑर्डर ऑफ हेयर फॉर प्रॉपर्टी ऑफ वुमन डाइड इंटेस्टेड। कोई अगर स्त्री इस दुनिया से चली जाती है विदाउट डूइंग हर विल, तो फिर अगर वो विदाउट विल चली जाती है तो फिर इसका इनहेरिटेंस कैसा होता है। तो श्रुति, नोट डाउन दिस पॉइंट आल्सो। हमको हिंदू सक्सेशन एक्ट के ऊपर सेपरेट एक वेबिनार लेना है। उसमें फिर हम पूरा डिटेल में क्लास 1 हेयर, क्लास 2 हेयर वगैरह सब डिटेल में करेंगे। तो वो भी एक अच्छा रहेगा। ऑलरेडी किया है, एक प्रोग्राम है पीछे, काफी दिन हुए हैं उसको करके। यूट्यूब पे इफ एनीबडी सर्च ऑन माय चैनल जयप्रकाश सोमानी, इसके ऊपर यूट्यूब के ऊपर, या जय सोमानी 64 ऐसा भी चैनल का नाम है, तो यू विल गेट दैट। लेकिन अब थोड़ा सा अपडेटेड करेंगे अभी उसको। नाउ आई विल एलेबरेट दिस प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ वुमन विथ सम केस लॉज ऑफ माय कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा, 2020, 9 SCC 1. Supreme Court held daughters are co-partner by birth, and father's death before 2005 does not extinguish daughters' rights. The judgment settled conflicting precedents. इसके पहले जो conflicting precedents थे, precedent means एक judicial decisions, प्रेसिडेंट शब्द अलग है जिसको अध्यक्ष वगैरह बोलते हैं ना, और प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट स्पेलिंग में भी फर्क है और प्रोनाउंसिएशन में भी फर्क है। प्रेसिडेंट PRESI ऐसा आता है, प्रेसिडेंट तो उसका अर्थ होता है अध्यक्ष। और प्रेसिडेंट PRECEDENT, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट मीन्स हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो एक डिसीजन देते हैं, और वो डिसीजन में अगर कुछ लॉ पॉइंट है, कुछ रेशो डिसेंडी है, सो दैट पर्टिकुलर जजमेंट इज कॉल्ड प्रेसिडेंट। वो एक न्यायिक तत्व हो जाता है। न्यायिक तत्व इज अ परफेक्ट वर्ड इन आवर मदर टंग। सो ये विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा के जजमेंट ने पहले कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट थे ना, कॉन्फ्लिक्टिंग प्रेसिडेंट थे, उसको सेटल कर दिया और ये क्लियर हो गया कि daughters are co-partner by birth and father's death before 2005 does not extinguish daughters' rights.
Then second case law is Prakash versus Pulavati, 2016 to SCC 36. Earlier held that father must be alive on the date of the amendment. पहले ऐसा पकड़ा जाता कि फादर, डेट ऑफ अमेंडमेंट जो है 2005 का, उसकी उस समय वो अलाइव अलाइव चाहिए. लेकिन लैटर क्लेरिफाइज दिस इन विनीता शर्मा केस. देन दनामा वर्सेस अमर, 2018, 3 SCC 343, recognize daughter's right to share in ancestral property. Then fourth part of today's presentation is married women's property rights. So marriage does not extinguish a woman's independent property rights. Suppose कोई working woman है, उसने वर्क करते करते सम प्रॉपर्टी सी हैज परचेस्ड. अभी बहुत क्या बोलते हैं, बहुत अच्छी डिग्निफाइड और सेल्फ रिस्पेक्ट रहने वाली वुमेन है. रूरल एरिया से आती है लेकिन बहुत सही ढंग से करियर करती है. तो उदाहरण तौर पे मैं दूंगा, मेरे लॉ फर्म में कनेक्टेड दो है ऐसी. एक हमारी श्रुति कृति है, ये भी कैसी बिहार एरिया से है, लेकिन करियर करके शादी के पहले से ही वो करियर में है, शादी के बाद भी उसका करियर बहुत अच्छा चल रहा है. दूसरी हमारी पूजा राय है, इसकी तो अभी शादी नहीं हुई है, लेकिन ऐसे एरिया से है उत्तर प्रदेश के कि जहां पे स्त्रियों को कोई अधिकार नहीं दिया जाता, एजुकेशन लेने नहीं जाता. अगर कोई एजुकेशन के लिए सिटी में जाता है तो उसके घर वाले पीछे से उसको, उसके माँ बाप को टोकते हैं, आपने सब कंट्रोल खो दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, अभी लड़की हाथ से निकल जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. रूरल एरिया के लोगों को मुझे ये बताना है कि आपकी बेटी इंडिपेंडेंस अगर बनती है, खुद के पैर के ऊपर खड़ी होती है, तो क्या प्रॉब्लम है? खाली आपकी मर्जी से उसकी शादी होनी चाहिए. आपकी मर्जी से उसकी शादी होके उसने खाली मोलकरनिंग का काम ही करना चाहिए, वो स्लेव ही बननी चाहिए. ऐसी इच्छा क्यों है? क्यों स्त्रियों को शादी के बाद इमीडिएटली घर के काम करने वाली एक वस्तु समझा जाता है? 50% ये थिंकिंग आज भी है. वी हैव टू एलिमिनेट दिस थिंकिंग. दो 2005 के अमेंडमेंट में काफी ताकत दी है वुमेन को. आज 2025 ने 26 में मैं बात करता हूं. 20 साल के बाद भी परिस्थिति ग्राउंड लेवल पे चेंज नहीं हुई है. एवरीथिंग कैनॉट बी चेंज्ड बाय द लॉ मेकर्स. हर चीज मोदी करेगा, हर चीज योगी करेगा, हर चीज हमारा देवेंद्र करेगा, ऐसा नहीं होता है. एज अ सिटीजन अपना भी कुछ दिमाग रहता है. जात के चक्कर में फिर ऐसे दहेज लेने वाले फैमिली में जाते हैं और दहेज के लिए जलाए मारे जाते हैं, जला के मारे जाते हैं. लेकिन बच्चे अगर पढ़ती है, उसको सपोर्ट दिया जाता है, तो कितना अच्छा हो. तो ये हमारी दूसरी जो एसोसिएट है हमारे लॉ फर्म में, जो हमारा डिजिटल मार्केटिंग वगैरह सतपुर का प्लेटफॉर्म दिखती है, पूजा राय है उसका नाम. ये उधर से पापा मम्मी को समझा के फिर वहां से दिल्ली आई, उसने सेपरेट करियर किया. मेरे लॉ फर्म में मेरी वो पर्सनल असिस्टेंट थी 3 साल, मैंने देखा है उसको. और ग्रूम हुआ उसमें, सीखने की, कुछ करने की जबरदस्त शक्ति उसमें है. और आज इंडिपेंडेंटली वो खड़ी हुई है, प्रॉपर्टी ले सकती है. तो ऐसी लेडी कोई अगर प्रॉपर्टी, श्रुति कीर्ति हो, पूजा राय हो, बाकी भी लेडी, बाकी मेरे ख्याल से मेरे लॉ फर्म पे 6-7 लेडीज है, तो ये भी मैरिज के पहले कुछ प्रॉपर्टी लेती है, मैरिज के बाद कुछ प्रॉपर्टी लेते हैं. तो मैरिज डज नॉट एक्सटिंग्विश वुमेन्स इंडिपेंडेंस प्रॉपर्टी राइट्स. मैरिज से उनके प्रॉपर्टी राइट में कुछ भी फर्क नहीं होता है. Before marriage or after marriage, situation is set. No changes.
इसलिए बिफोर मैरिज जो प्रॉपर्टी आपको मिलती है खुद की कमाई हुई हो, पापा से आई हो, आफ्टर मैरिज आपको पति की प्रॉपर्टी, आपकी फादर इन लॉ की प्रॉपर्टी आपके पास आती है, तो पुरानी भी प्रॉपर्टी आपके पास ये भी है। और आफ्टर मैरिज आपके पिता से या दादाजी से कुछ प्रॉपर्टी आती है तो वो भी आपको मिलती है। सो ये इंडिपेंडेंट करने का काम पार्लियामेंट ने तो किया है। इंटरकास्ट मैरिज हो, अच्छे हो, कम्युनिकेशन समाज में कम्युनल हो, ये कोशिश किया है सरकार ने। उसके लिए स्पेशल मैरिज एक्ट आया है। मेरा खुद का उदाहरण है घर का, मेरी बेटी ने भी इंटरकास्ट किया है, मेरे बेटे ने भी इंटरकास्ट किया है, लेकिन बहुत हैप्पी है, हमने सपोर्ट किया, हमने देखा दे हैव चॉइस, दे आर एजुकेटेड इक्वल पार्टनर्स, और बहुत आनंदी है, बहुत हैप्पी है दोनों भी। क्या ईगो पकड़ते हैं यार, मुझे समझ में नहीं आता है कि जात में ही देना चाहिए, जात में ही देना चाहिए, और दहेज दे के दहेज दे देते तो जला के मार देते बच्ची को। माफ करना, मैं प्रॉपर्टी राइट्स की वुमन के ऊपर बात कर रहा हूं, ये दहेज की प्रॉपर इसके ऊपर नहीं है आज का मेरा विषय। लेकिन जस्ट आई वांट टू एलिब्रेट दैट कि सोशल मेंटेलिटी 50% आज भी खराब है। थोड़ा बच्चियों को सीखने दो ना, बच्चियों को थोड़ा इंडिपेंडेंस दो ना, वो बहुत वाइज है, बहुत अच्छा तरीके से सोचती है, बहुत अच्छा तरीके से करती है वो काम। मैं देख रहा हूं कितनी सही ढंग से वो करती है, कितनी डेडिकेटेड है। ये हमारी श्रुति कीर्ति है ना, ये इतनी डेडिकेटेड है ना कि जब हमारी मीटिंग ऑनलाइन होती है ना, तो ऑनलाइन मीटिंग जब होती है तब मीटिंग खत्म करने के बाद विद इन 3 मिनट्स मिनट पॉइंट्स आ जाता है मेरे व्हाट्सएप के ग्रुप के ऊपर, हमारे एडमिन जो ग्रुप है हमारे लॉ फर्म का। अरे ये बच्ची सुनती कब है, पॉइंट लिखती कब है, डालती कब है, समझ में ही नहीं आता है, क्या स्पीड है काम करने का। हैट्स ऑफ टू देयर पेरेंट, उसके हस्बैंड को, उसके पापा को, उसके फादर इन लॉ को मैं सैल्यूट करता हूं कि सही में किस ढंग से ग्रूम कर रहे हैं आप आपके बच्चियों को। ये भी बिहार से है, दूसरी मैंने पूजा बताई वो उत्तर प्रदेश से है। आज वो करियर, ऐसे काफी बच्चियां हैं अभी आगे आ रही है, लेकिन वो दिल्ली में आने के बाद या बड़े शहरों में आने के बाद उनको काम करने का मौका मिलता है, उनको उनके गांव में, उनके उनके शहरों में क्यों नहीं मिल रहा है। ये मेरा पॉइंट है दोस्तों, वी वांट टू हाईलाइट दिस पॉइंट। इसके लिए मेरी कुछ भी मदद लगती है आपको तो आप मांग सकते हैं, मैं ऑनलाइन हूं रेडी अवेलेबल कभी भी आपके लिए। फिजिकली बहुत कम चांस मिलता है मुझे, लेकिन अगर बड़ा प्रोग्राम कोई लेता है तो फिजिकली भी मैं आ पाऊंगा आपके पास। और स्पेसिफिकली आप क्या करो, कॉलेजेस जो है, कॉलेजेस में जो गर्ल्स है, गर्ल्स के लिए वेबिनार लो, वुमेन्स के राइट के ऊपर या प्रॉपर्टी लॉ के ऊपर, जो करना है करो, मेरे से डिस्कस करो, श्रुति से डिस्कस करो, कॉलेज में ले लो, कॉलेज के प्रिंसिपल को समझाओ, ऑनलाइन लगाओ, वहां पे बड़े स्क्रीन के ऊपर लगा दो, मैं यहाँ से बात करूंगा। कॉलेजेस में ले सकते हैं, वुमेन्स एसोसिएशंस रहते हैं, बड़ी बड़ी डोटी टीटी पार्टीज करती है वुमेन्स, वो ऐसे 10-12 टीटी पार्टीज के ग्रुप इकट्ठा आके कोई प्रोग्राम करता है। ये रूरल एरिया तक अवेयरनेस बहुत जरूरी है। और जो ऑनर किलिंग का पार्ट होता है ना, ऑनर किलिंग का पार्ट कम होना चाहिए, ये होना चाहिए। क्या केसेस आते हैं यार, क्या बताऊं आपको, बुरा लगता है। एक मेरे पास केस आया है, उसके ऊपर उसके उस उसने जो लड़की के साथ शादी की है, उस लड़की को भगाने का आरोप है, भगा के उसके ऊपर रेप करने का आरोप है। खाली जस्ट उसकी मर्जी से, वो पिताजी की मर्जी के खिलाफ इसने जाके शादी की है, इसलिए ऑनर किलिंग करने की कोशिश की दामाद की, लेकिन वो वहां से भाग गए। बिहार का केस है, बिहार से भाग गए गुजरात में गए। 16 साल हो रहे गुजरात में रह रहा है। हाईकोर्ट ने कंसीडर नहीं किया कि मेरे पास केस आया है, और मैंने एक ही मिनट आर्ग्यू किया, एक मिनट के आर्गुमेंट में यो केस एडमिट हो गया। बच्चा है उनको, दे आर लिविंग हैप्पीली लाइफ। खाली इसने मेरे बच्ची को भगा के ले गया, उसके ऊपर रेप किया, ऐसा एफआईआर कर दिया।
और पुलिस भी आंखें बंद करके इन्वेस्टिगेशन कर रही है, चार्जशीट फाइल कर रही है, उसको पनिशमेंट नीचे के कोर्ट में दिया जाता है, फिर ये हाई कोर्ट में आते हैं, हाई कोर्ट से होता है, बेल भी मिलता है, बाहर भी रहता है। और टेंशन, 16 साल से टेंशन झेल रहा है। मेरे पास डिस्कशन के लिए आया, मैं बोला मत आओ यार, कोई आने की जरूरत नहीं आप गुजरात से। नहीं, बोले सर मुझे बहुत ऐसा लगता है कि आपके साथ, आपके वीडियो वीडियो देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं ऐसा लगता हूँ कि मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ। मैं बोला भाई दर्शन भगवान के किए जाते हैं, हम तो एकदम सामान्य आदमी हैं। फिर आया, मुझे भी समझाया, मैं दिखा। जज, हमारे जज तो वही थे, वो 1 मिनट में जज समझ गए, पर नोटिस किया और क्लियर कट उसको उस पे से बाहर निकाल दिया। दे आर लिविंग वेरी वेरी ब्यूटीफुल लाइफ। क्यों? बाप को समझ में नहीं आया ये चीज कि बेटी अच्छे व्यक्ति के साथ जा रही है, एजुकेटेड है, अच्छा है। होके मैरिज कर दो ना। मेरे बेटी ने इंटरकास्ट मैरिज किया, हमने होके कर दिया उसको मैरिज, बहुत अच्छा, अच्छा एक्सपेंसेस करके बहुत अच्छा मैरिज कर दिया। बेटे ने इंटरकास्ट किया, हमने वो भी मैरिज सेलिब्रेट किया, समाज के लोगों को बुलाया, कुछ लोगों ने नाम रखा, रखने दो। अरे माता पिता सपोर्ट नहीं करेंगे बच्चे को, तो क्या समाज सपोर्ट करने के लिए आने वाला है क्या? बिल्कुल नहीं दोस्तों। एजुकेशन ने आपको मजबूत बनाया है, ये निकाल दो ना यार। अभी ये कास्टिज्म जो है, लोअर कास्ट अपर कास्ट निकाल दो, अभी कास्ट एजुकेशन का है। भाई 12वीं के नीचे पढ़े हुए का एक अलग क्लास है, 12वीं के आगे लेकिन ग्रेजुएशन के बीच में की अलग क्लास है, आफ्टर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन अलग क्लास है। अभी मेरे दामाद और बेटी दोनों एक अलग हाईली एजुकेटेड लोग हैं। मेरा बेटा मेरी बहू दोनों एमबीए कॉलेज में साथ में ही थे। खाली एक बेटा थोड़ा 1 साल आगे था, बहू मेरी 1 साल पीछे थी। दोनों बहुत बढ़िया, दो दो कंपनियां चलाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों को फैमिली हमने इकट्ठा आके डिसीजन ले लिया, गुड डिसीजन है, बच्चों ने अच्छा डिसीजन लिया है। फिर इनको भागने के जाने की, इसके उधर की जरूरत ही नहीं पड़ी। इसलिए दोस्तों हमको थोड़ा सा अवेयरनेस करना चाहिए है। 50% है, ये समाधान कारक बात है कि 50% अवेयरनेस हुआ है। लेकिन आज 50% स्त्री के ऊपर अत्याचार अन्याय हो रहा है। स्त्री ब्याने के बाद उसको काम वाली का दर्जा ही समझा जाता है। वो इंजीनियर है, वो सीए है, उसके कुछ सपने हैं, इसके ऊपर फोकस ही नहीं है। उसने आने के बाद बेटे ने गरम गरम नाश्ता करना चाहिए, गरम गरम चाय देना चाहिए, गरम गरम खाना देना चाहिए। ये मेंटालिटी में समाज पड़ा हुआ है। 50%, 50% अवेयरनेस है। 10 साल 15 साल पहले अगर देखते हैं तो 20% अवेयरनेस होगा, 80% प्रॉब्लम होगा। नाउ थिंग्स आर चेंजिंग। लेकिन इतना दिन क्यों लग रहा है भाई चेंज होने को? 2005 के अमेंडमेंट के बाद 2026 में भी मैं ब्लड मेरा बाढ़ रहा हूं वो पॉइंट के ऊपर। क्यों जरूरी है इसकी? बिकॉज वी हैव दी पैट्रियर्कल मेंटल सिचुएशंस। हम जो मेल डोमिनेटिंग जो माइंड है ना, उसके बाहर नहीं निकल रहा है ना, ये प्रॉब्लम है। चलो अगले पॉइंट के ऊपर जाते हैं। तो मैरिड वुमन may own property through inheritance, gift, purchase, maintenance, रिटर्न। किसी भी मार्ग से उसके पास प्रॉपर्टी आओ, सी इज एब्सोल्यूट ओनरशिप, सी कैन डू हर विल। उसका मैरिज का, उसके प्रॉपर्टी के राइट्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है। कभी कभी अनफॉर्चुनेटली किसी स्त्री का डिवोर्स हो जाता है, डिवोर्स के बाद वो अलग और शादी कर लेती है, तो भी 2 मैरिज 3 मैरिज भी कभी कभी हो जाते हैं, तो भी उसका प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। एक कानून बहुत परफेक्ट है। श्रीधन, what Sridhan is includes, Sridhan includes gift from parents, gift from husband, gifts received at marriage and personal earnings. याद रखना, पर्सनल अर्निंग्स इज योर श्रीधन। अभी तक आपको यही मालूम था कि जो शादी के समय मिलता है पापा से, वो श्रीधन है। लेकिन गिफ्ट फ्रॉम पेरेंट्स, गिफ्ट फ्रॉम हस्बैंड, गिफ्ट रिसीव्ड इन एट मैरिज, मैरिज के समय में अलग अलग लोगों से जो गिफ्ट आते हैं वो भी श्रीधन का पार्ट है। और पर्सनल अर्निंग्स ऑफ दैट वुमन इज श्रीधन।
ये ज्यादा शक्ति दी है ये श्रीधन के पॉइंट ने वुमन को देन कंपेयर टू मेल। मैं अगर एवरी मंथ 1 तोला सोना परचेस करता हूं तो मेरे पास जितना भी सोना है उसमें आधा अधिकार मेरी वाइफ का है, 100%। लेकिन वाइफ के पास सोना जो है उसमें मेरा अधिकार नहीं है, बिकॉज सी हैव दिस श्रीधन। तो किसी ने एक केस मेरे पास लाना चाहिए कि देर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ श्रीधन, व्हाई देर इज नॉट अ कॉन्सेप्ट ऑफ पुरुष धन। तो कॉन्स्टिट्यूशन हम सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल करेंगे पुरुष धन के लिए। तो कम से कम मेरे पास जो भी सोना हम परचेस करते हैं एवरी मंथ, तो वो कम से कम मेरा अब्सोल्यूट ओनरशिप तो हो उसके ऊपर, पुरुष धन तो भी होना चाहिए। तो इसमें का कॉमेडी पार्ट अगर छोड़ देते हैं दोस्तों, तो श्री को श्रीधन ने बहुत प्रोटेक्ट किया हुआ है। श्रीधन एक कॉन्सेप्ट में प्रोटेक्ट किया हुआ है, श्रीधन को बहुत प्रोटेक्शन है, याद रखना। अगर कभी इंसॉल्वेंसी का इशू आता है, कभी कभी नीलामी का इशू आता है, तो श्रीधन इज प्रोटेक्टेड। श्रीधन को कोई नहीं छीन सकता आपसे। लेकिन इसका मिसयूज भी करते हैं कुछ लोग, वो बात अलग है। ये देखो, हम लॉयर हैं, हम ए साइड से भी बात कर सकते हैं, हम ओ साइड से भी बात कर सकते हैं, क्योंकि हमको हमारे पास कौन सी साइड का केस आने वाले पता नहीं चलता है। अभी कभी कभी हम हाई कोर्ट का कोई जजमेंट देख लेते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट रहता है, तो हमको मालूम रहता है कि कोई न कोई ये केस में हमारे पास आने वाला है। तो हम क्या करते हैं, वो जजमेंट का, अगर रिस्पोंडेंट हाई कोर्ट का हमारे पास आया तो हम क्या सोल्यूशन उसको दे सकते हैं, और वाइस वर्सा दूसरी पार्टी आई तो क्या सोल्यूशन दे सकते हैं। दोनों के एंगल से हम स्टडी करके रखते हैं उसका, ये करते आना चाहिए लॉयर को। लॉयर शुड बी ऑलवेज अ मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी। और ये मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी तभी बनती है आपकी जब आप मल्टी फैसिलिटेड होता है। सो दिस इज द श्रीधन। वुमन हैव एब्सोल्यूट ओनरशिप ओवर श्रीधन। लैंडमार्क जजमेंट है प्रतिभा रानी वर्सेस सूरज कुमार, 1985 to SCC 370. Supreme Court held that Sridhan remains the woman's exclusive property. Husband or in-laws holding it act as a trustees. अगर बाई चांस सास के पास या ससुर के पास श्रीधन उसका है, तो सास या ससुर वो श्रीधन का ट्रस्टी है। हस्बैंड और इन लॉज holding it act as a trustees. Then property rights under Muslim law. Muslim personal law grants women definite shares in inheritance. Governed by Muslim Personal Law Shariat Application Act 1937. इसके की प्रिंसिपल है मुस्लिम वुमेन्स के प्रॉपर्टी राइट्स के। वुमेन आर लीगल हेयर्स, शेयर्स आर प्री डिफाइंड, उनका शेयर प्री डिफाइंड किया हुआ है। फीमेल्स फीमेल हेयर्स यूजुअली रिसीव्ड हाफ ऑफ द मेल शेयर। ये थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन है, इसके ऊपर अमेंडमेंट होना चाहिए कि मेल को जो शेयर मिलता है उससे फीमेल को 50% शेयर मिलेगा। एग्जाम्पल, डॉटर रिसीव्स हाफ शेयर ऑफ सन इन मुस्लिम लॉ। डॉटर रिसीव्स हाफ शेयर ऑफ सन एज कंपेयर टू सन, एंड विडो रिसीव्स 1/8 शेयर इफ चिल्ड्रन एग्जिस्ट। चिल्ड्रन अगर जिंदा है तो विडो को, पति जाने के बाद जो विडो बनती है उसको 1/8 शेयर मिलता है मुस्लिम पर्सनल लॉ में। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन दिखता है, इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आ जाता है ना, तो पूरे भारत में बहुत यूनिफॉर्मिटी रहेगी। और इसमें कल्याण यूनिफॉर्म सिविल कोड में खाली मुस्लिम उमन का कल्याण ज्यादा हो, ये याद रखना। मुस्लिम समाज का कल्याण ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे बिगामी प्रिंसिपल आ जाएगा, एक से ज्यादा शादी नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे कुटुंब नियोजन के प्रिंसिपल आ जाएंगे, फालतू का पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगा। फिर कम पॉपुलेशन है, रिस्ट्रिक्टेड फैमिली है, एजुकेशन अच्छा मिलेगा, और फिर प्रोग्रेस भी ये समाज का अच्छा होगा।
जो हम आज मुस्लिम समाज हमारे भारत में देख रहे हैं, 80% पॉवर्टी लाइन के नीचे है, बिकॉज ऑफ ओनली दीज इश्यूज। पॉपुलेशन है, एजुकेशन की कम है, कुरान के प्रिंसिपल उल्टे पाल्टे करके कुछ लोग समझाते हैं उनको कि अदर देन मुस्लिम जो कुछ है वो काफिर है, काफिर को काटो मारो डालो, ऐसे टेररिज्म का दिमाग उनके बना लेते हैं बिकॉज ऑफ लेस एजुकेशन। सभी मुसलमान क्यों नहीं टेररिस्ट बनते हैं? जो एजुकेशन लेता है, समाज में मिक्स होते हैं, उनको मालूम है सच क्या है, क्या है, सही कुरान क्या है, सही इंटरप्रिटेशन कुरान का क्या है। इसलिए एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। और यूनिफॉर्म सिविल कोड का सबसे ज्यादा फायदा मुस्लिम कम्युनिटी को होगा, ये मेरा प्रिडिक्शन है दोस्तों। बाकी हिंदू को कुछ फायदा नहीं होने वाला उसका। क्या होने वाला है? हमको तो वैसे भी एक ही शादी करने का अधिकार है, यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद एक ही शादी करने का अधिकार रहेगा। हम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा मुस्लिम समाज में। हाँ, मुस्लिम समाज के वो लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे जिनको वुमेन को पैर की जूती समझना है। स्ट्रेट फॉरवर्ड है मेरा ये भाषण। मैं मुस्लिम के समाज के खिलाफ नहीं हूं, बिल्कुल नहीं हूं। मैं हिंदुइज्म का पक्ष नहीं रख रहा हूं आपके सामने। मेरा धर्म ग्रंथ कॉन्स्टिट्यूशन है। एज ए लॉयर, हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मुस्लिम मेरे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन हैव गिवन इक्वल राइट टू मुस्लिम हिंदू टू ऑल। इसलिए एज पर कॉन्स्टिट्यूशन इज द मुस्लिम्स आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर कंट्री। इनको हम कंट्री के बाहर निकालने का सोच भी नहीं सकते, सोचना भी नहीं चाहिए। इसलिए हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन का राज है, ना हिंदू का राज है ना मुसलमान का राज है। गप्पे कितने भी लगाओ, कॉन्स्टिट्यूशन का राज है। और कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए मैं जैसे मुस्लिम के बारे में बात करता हूं कि मुस्लिम इज द पार्ट ऑफ इंडिया। हाँ, कुछ लोग हैं कि जो खराब मेंटेलिटी के हैं, उतने छोड़ दो। वो खराब मेंटेलिटी के लोग किस कम्युनिटी में ज्यादा है, किस कम्युनिटी में कम है, इतना ही फर्क है। वो पार्ट एंड पार्सल है। वैसे इंग्लिश के बारे में भी मेरा स्टेटमेंट है, इंग्लिश इज नॉट फॉरेन लैंग्वेज। इंग्लिश इज इंडियन लैंग्वेज नाउ बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइज इंग्लिश। सो इंग्लिश इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज। दिमाग से निकाल दो। थोड़ी बहुत पनिशमेंट कर लेते हैं ना, चौथी पांचवी में इंग्लिश के शब्द पाठ नहीं करते, वो टीचर लोग उनके हाथ के ऊपर वो डंडे मारते रहते हैं, वो डर के कारण वो इंग्लिश से दूर चले जाते हैं और वो मेंटेलिटी में अटक जाते हैं कि इंग्लिश ये फॉरेन की लैंग्वेज है, ब्रिटिश की लैंग्वेज है। 70 साल हो गए ब्रिटिश जाके, फिर इंग्लिश कम क्यों नहीं हो रहा है? ये न्यूनगंड है। आप इंग्लिश नहीं सीखे इसलिए ये न्यूनगंड डेवलप हुआ है। मेरा भी था, मैं भी था। मैं लॉ सीखने के पहले मुझे भी लगता था कि इंग्लिश इज ब्रिटिश लैंग्वेज। मेरा तो जन्म 64 का है, एंड 64, 65 पकड़ लो। आजादी के बाद जन्म हुआ है, काफी साल के बाद हुआ। आजादी के काफी साल के बाद जन्म हुआ। मुझे ऐसा ही लगता था। मेरा मराठी मीडियम में एजुकेशन हुआ, लेकिन जैसे जैसे मैंने लॉ पढ़ा, हाँ 10वीं के बाद मैंने पूरा इंग्लिश मीडियम ले लिया, क्योंकि पता चल गया था मुझे कि इंग्लिश के सिवा करियर के एंगल से मैंने इंग्लिश सीखा। लेकिन दिमाग में था इंग्लिश फॉरेन की लैंग्वेज है, इंग्लिश ब्रिटिश की लैंग्वेज है। लेकिन जब लॉ कंप्लीट किया तब पता चला इंग्लिश इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज। जैसे मराठी हमारी भारत की भाषा है, हिंदी भारत की भाषा है, गुजराती भारत की भाषा है, तमिल सबसे पुरानी भाषा है भारत की। सबसे पुरानी भाषा तमिल है। ये सब भारतीय भाषा है ना, ऐसी इंग्लिश भी भारतीय भाषा है, कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज है। इसलिए दोस्तों, थोड़ा सा अतिरेक अगर हम कम करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के एंगल से चलते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन का इंप्लीमेंट करते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में दिया है यूनिफॉर्म को सिविल कोड आना चाहिए, उसको सही में अगर हम हमारे नेता लोग लाते हैं और हमारी समाज की भी मेंटेलिटी मुस्लिम के प्रति, मुस्लिम की हिंदू के प्रति, हमारे एक दूसरे के प्रति अगर अच्छी हो जाती है, तो मेरे ख्याल से हमारा देश तो बहुत अच्छा अभी डेवलप हुआ है और भी डेवलप हो जाएगा अच्छा। ऐसा मुझे लगता है। नाउ आई एम टर्निंग
in last sentence of this Muslim law. Despite smaller shares, Muslim law historically gave women inheritance right earlier than many other systems. वुमन मुस्लिम वुमन को मुस्लिम लॉ में इनहेरिटेंस राइट बाकी कम्युनिटी से पहले ही मिला है। बाकी कम्युनिटी तो बाद में मिला, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी में वुमेन्स को प्रॉपर्टी का इनहेरिटेंस राइट जो है वो काफी पहले ही मिल चुका है। खाली वो शेयर मेल के कंपैरिजन में कम है वगैरह वगैरह, ये डिस्क्रिमिनेशन है। और ये छोटे छोटे सब डिस्क्रिमिनेशन यूनिफॉर्म सिविल कोड से हट जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। माफ करना, मैं किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं हूं, किसी भी धर्म के विरोध में नहीं हूं। मैं हूं भारत के प्रोग्रेस के लिए। भारत मेरा एकमात्र आदर्श है, भारत का विकास ही मेरा एक सपना है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का प्रैक्टिस करते समय मेरे पास जो क्लाइंट आते हैं, ये क्लाइंट कितने जल्दी यहाँ से फ्री हो जाएंगे और कितने जल्दी प्रोडक्टिविटी में अपने अपने लग जाएंगे, यही मुझे लगता है, यही मेरा सोच है। जरूरी नहीं कि मेरे हर थॉट के साथ साथ आपने क्या बोलता है सम्मिलित होना जरूरी नहीं है, लेकिन जो अच्छे लगते हैं आप शेयर कर सकते हैं। आपको एक पॉइंट अच्छे लगते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जो डाल सकते हैं कमेंट में डालो। आप यूट्यूब पे जाने के बाद यूट्यूब में भी कमेंट्स रहते हैं, वहां पे भी डालो। ओके, हमारे जो वीडियो है वो शेयर करो। अवेयरनेस करना है मुस्लिम समाज। तो मुझे कितने बार बुलाया है, मालेगांव था, मालेगांव में मुस्लिम समाज ने मुझे बुलाया था लेक्चर्स के लिए। क्या लेक्चर हुआ था भाई, मुस्लिम समाज का लेक्चर हो, हिंदू समाज का लेक्चर हो, या किसी भी समाज का लेक्चर हो, जब पब्लिक लेक्चर ऐसा मैं फिजिकल जाता हूं ना, तो लोकाभिरामम रणधीर, वो जो मेरे राम रक्षा के कुछ दो श्लोक है, वो श्लोक के साथ ही मैं मेरा भाषण शुरू करता हूँ। मैं ये नहीं देखता हूँ मैं मुस्लिम के प्लेटफॉर्म पे तो फिर मैं वो हिंदू के श्लोक के ऊपर, वो हिंदू के नहीं है। राम खाली हिंदू के है ही नहीं, कृष्ण कृष्ण खाली हिंदू के है ही नहीं, ये सबके हैं। तो कोई टाइप की डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहा। और जिस दिन मैं मुस्लिम समाज ने मुझे बुलाया था, बड़ा प्रोग्राम लिया था, 400 500 बिजनेसमैन आए थे वो मालेगांव में, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ था। काफी साल हो गए मेरे ख्याल से 7 8। उस समय एकादशी का दिन था और मुझे एकादशी रहती है। तो मैंने पहले ही बताया था कि भाई मुझे एकादशी है, तो मैं उपवास का ही खाते हैं। तो उन्होंने एक मुस्लिम के घर में उन्होंने मेरे लिए उपवास का बंदोबस्त किया था। स्पेशल कोई उनके हिंदू फ्रेंड को बुला के फिर वो साबूदाना की खिचड़ी ये वो थोड़ा सा करके दिया था। और आज तक मैंने कभी एकादशी को उपवास इतने सही ढंग से एंजॉय नहीं किया उतना उस दिन मैंने किया था। क्योंकि उस दिन उन्होंने और एक चीज की थी, डाइनिंग टेबल के ऊपर एक मुस्लिम फैमिली की बात बता रहा हूं मैं, उन्होंने हिंदू फ्रेंड को बुला के अपने वो सब उपवास का बंदोबस्त किया था। वो उस दिन मेरे साथ वो भी उपवास का ही खा रहे थे। और डाइनिंग टेबल के साइड में उन्होंने विट्ठल भगवान की मूर्ति रखी थी। विट्ठल भगवान ये हमारा कृष्ण का ही रूप महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में सबसे बड़ा देव भगवान जो मानते हैं विट्ठल भगवान मानते हैं, पंढरपुर के। तो विट्ठल भगवान की मूर्ति डाइनिंग टेबल के ऊपर एक साइड में वो मुस्लिम समाज ने अरेंज की थी। और ऐसी विट्ठल की मूर्ति डाइनिंग टेबल पे रख के एकादशी का फराळ करने का प्रसंग बहुत कम बार मुझे मिला है। कैसे करूं मैं, जब इतना मुस्लिम समाज भी मुझे अच्छा एंटरटेन करता है, अच्छा बुलाता है, अच्छा करता है, और मैं देखता हूं, तो फिर कैसे हम किसी के खिलाफ बात कर सकते हैं बताओ। थोड़े से आंखें खोलो दोस्तों। एजुकेशन दिया है ना भगवान ने हमको, हमारे माता पिता ने एजुकेटेड किया है ना, तो थोड़ा सा ये जो रीजनल रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन दिमाग में जो चल रहा है ना, इसको हटाओ दोस्तों, और कॉन्स्टिट्यूशन को नंबर 1 पे लाओ। मैं गीता रोज पढ़ता हूँ, 15 श्लोक आरती के साथ पढ़ता हूँ। रीडिंग डेली 15 श्लोक विथ इट्स मीनिंग। आफ्टर 40 डेज गीता से एक वर्ष मेरा कंप्लीट हो जाता है। ऐसे मैं कॉलेज के जमाने से अभी तक कर रहा हूं। लेकिन जब राष्ट्र की हित की बात आती है तो मेरे लिए गीता नंबर 2 पे है, नंबर 1 पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। हिंदुइज्म मेरे लिए 2 नंबर पे है, कॉन्स्टिट्यूशन नंबर ऑफ इंडिया नंबर 1 पे है। ये याद रखना। ये भारत का हर नागरिक अगर याद रखेगा ना,
तो किसकी उंगली उठाने का हिम्मत नहीं है दुनिया के किसी देश में हमारे देश के खिलाफ। दोस्तों, मेरे किसी भी वीडियो के लिए मैंने कॉपीराइट नहीं रखे हैं। मेरे वीडियो का कुछ पार्ट तोड़ मोड़ के आप क्या बोल सकते हैं, उसको कर सकते हैं, रील्स वील्स कर सकते हैं। मेरे किसी भी किताब का प्रॉपर्टी राइट नहीं है, कॉपीराइट नहीं है। मेरे 65+ बुक्स है, मैंने नहीं रखा है, मुझे नहीं चाहिए कॉपीराइट है। मेरा खुली खुली किताब है मेरा लाइफ। वो किताब का अगर किसी को यूज होता है, वो उसका जेरोक्स निकाल के यूज करता है, तो मुझे कोई लेना देना नहीं उसका। मुझे पैसा मेरे सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस में ईश्वर ने अच्छा दिया है। मुझे बुक सेल करके पैसा कमाने में कोई इंटरेस्ट नहीं। मिलता है अच्छा, वो बात अलग है, अच्छा पैसा मिलता है। अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट के ऊपर जाओ, जयप्रकाश सोपारी बुक्स डालो, यू विल फाइंड द लिस्ट ऑफ बुक्स। लेकिन वो बुक आपको अच्छा लगता है और आपके केस लॉज मिलते हैं, आप केस जीतते हैं। काफी हाई कोर्ट के जजेस वगैरह बुक्स लेते हैं और लॉयर्स लेता है, जीतता है। और आपका कोई कलीग्स उसका वो बुक का कोई जेरोक्स करके अगर लगाता है, तो कोई इशू नहीं है। मुझे कितने भी जेरोक्स करने तो कोई इशू नहीं। कोई कॉलेज अगर एक बुक परचेस करता है, उसकी जेरोक्स यूज करके अगर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो मुझे कोई एतराज नहीं। आई डोंट वांट एनी कॉपीराइट। इसलिए मेरे वीडियो रहो, मेरे बुक्स रहो, कोई कॉपीराइट मुझे नहीं चाहिए। समाज के लिए है, जब बर्थ हुआ है वो बुक का, वो समाज के लिए हुआ है, समाज को ही डेडिकेटेड है वो। ऐसा है। नाउ पार्ट 6 दोस्तों, प्रॉपर्टी राइट्स अंडर क्रिश्चियन एंड पारसी लॉज। क्रिश्चियन वुमेन inherit property under the Indian Succession Act 1925। ठीक से सुनिए, क्रिश्चियन वुमेन को या पारसी वुमेन को हिंदू सक्सेशन एक्ट एप्लीकेबल नहीं है, उनका है इंडियन सक्सेशन एक्ट। क्रिश्चियन वुमेन इनहेरिट प्रॉपर्टी अंडर इंडियन सक्सेशन एक्ट। इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 31 to 49, rules relating to intestate succession among Christians, and section 33, widows share in husband's property. Landmark case related to this, Mary Roy versus State of Kerala. Citation 1986 to SCC 209. The court held that Christian women in Kerala have equal inheritance rights under the Indian Succession Act. So, in this case law, court held that Christian women in Kerala, अभी वो केरला से रिलेटेड केस था, इसलिए क्रिश्चियन वुमेन इन केरला है। लेकिन एक बार सुप्रीम कोर्ट का कोई प्रेसिडेंट आ जाता है, तो इसे एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया, ये आर्टिकल 141 बोलता है। तो एप्लीकेबल टू होल इंडिया। तो क्रिश्चियन वुमेन इन केरला हैव इक्वल इनहेरिटेंस राइट्स अंडर द इंडियन सक्सेशन एक्ट। ये आउटकम है वो केस का। मैं जितने भी केसेस बताता हूं, ये केसेस के जजमेंट, अगर आप लॉ स्टूडेंट है, लॉयर है मेरे ऑडियंस में, तो आप वो जजमेंट पूरे के पूरे देख लेना। पूरा जजमेंट पढ़ना पॉसिबल नहीं हुआ तो कम से कम शुरू के थोड़े फैक्ट्स पढ़ो, बीच में का थोड़ा सा छोड़ दो, और बाद में एंडिंग कंक्लूडिंग जो रिमार्क्स है, डिसीजंस है, रेशो डिसेंडी है, वो पढ़ते रहो। देन पार्ट 7, रेसिडेंशियल राइट्स ऑफ वुमन। Women have a right to residence in matrimonial home under the Protection of Women from Domestic Violence Act 2005। जो डीवी एक्ट हम बोलते हैं ना शॉर्ट में, एक्चुअली डीवी एक्ट का डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ऐसा नाम नहीं है। डोमेस्टिक डीवी एक्ट का नाम है पूरा प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। इंपॉर्टेंट सेक्शन इसके क्या है, ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है, अभी मैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको डोमेस्टिक वायलेंस के एक्ट के अंदर रेसिडेंस का राइट जो वुमेन का है वो बता रहा हूं, कि वुमेन को घर में रहने का अधिकार, अगर वो घर उसके पिता, उसके पति के नाम पे है या ससुर के नाम पे है, उसके नाम पे नहीं है, तो भी उसको वो घर में रहने का राइट है। Nobody can take away that right from that woman.
और याद रखना, ये प्रोटेक्शन ऑफ वुमन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत है, एंड डोमेस्टिक वायलेशन एक्ट इज एप्लीकेबल टू ऑल, टू हिंदूज ऑल्सो, टू मुस्लिम्स ऑल्सो, टू क्रिश्चियंस ऑल्सो, टू पारसीज ऑल्सो, लाइक आईपीसी एंड सीआरपीसी, जैसा बीएनएस और बीएनएसएस, नया नाम नाम है उसका। तो इसके जैसा सभी समाज को एप्लीकेबल है। इसलिए रेसिडेंशियल राइट फॉर वुमन इज एप्लीकेबल टू होल ऑल वुमन इन इंडिया। ये अवेयरनेस लाओ दोस्तों, वुमन के अवेयरनेस का बहुत काम हमको करना है, बहुत काम करना है। और ये नानी पालकी वाला नेशनल लॉ क्लब के प्लेटफॉर्म से हम कर रहे हैं ऑलरेडी। लेकिन आप आगे आइए, आप छोटे छोटे गांव से फोन आने चाहिए, श्रुति को, मनोज को, हमारे जितने भी एसोसिएट सबको छोटे छोटे गांव से फोन आने चाहिए। अरे सोमानी सर का लेक्चर अरेंज करना है, सोमानी सर का लेक्चर अरेंज करना है, हमारे वुमेन के अवेयरनेस के लिए करना है, हमारे इधर के अवेयरनेस के लिए करना है। मैं आज वुमेन का राइट का पार्ट है, वुमेन एम्पावरमेंट का पार्ट है, इसलिए मैं वुमेन की बात कर रहा हूं। लेकिन आप किसी को कॉर्पोरेट का करना है, किसी को अलग अलग लॉ के ऊपर करना है, तो भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, मुझे अच्छा लगता है। और जो भी ऑनलाइन प्रोग्राम आप मेरे लेंगे उसमें मेरा कोई रेमुनरेशन का कंडीशन नहीं है। आप रेमुनरेशन जो देंगे वो हम ले लेंगे, कोई इशू नहीं। किसी ने कितना दिया, कम दिया, ज्यादा दिया, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है। जो दिया वो दिया, कोई इशू नहीं है। हमारा मेन काम है, हमारा नॉलेज वहां तक जाता है ना, पब्लिक पे अवेयरनेस होता है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। नाउ अंडर दिस लॉ, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन्स फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, इसके कुछ सेक्शन बताता हूं इंपॉर्टेंट आपको। इंपॉर्टेंट सेक्शन 17 है, राइट ऑफ रेसिडेंस इन शेयर्ड हाउस होल्ड, एंड सेक्शन 19 इज रिलेटेड, 19 कोर्ट में पास रेसिडेंस ऑर्डर। लैंडमार्क केस इसका है सतीश चंद्र आहूजा वर्सेस नेहा आहूजा, लेटेस्ट केस है 2021 का, 1 SCC 414। The court expanded the meaning of shared household. The court expanded the meaning of shared household, protecting women's residence rights, even in property owned by laws, by in-laws. बहुत अच्छा डिसीजन है, जरूर पढ़ना चाहिए पूरा। The court expanded the meaning of shared household. शेयर हाउस होल्ड का मीनिंग उन्होंने, कोर्ट ने बताया है, प्रोटेक्टिंग वुमेन्स रेसिडेंस राइट्स इवन इन प्रॉपर्टी ओन्ड बाय इन लॉज। इन लॉज के ओनरशिप में अगर प्रॉपर्टी है तो भी वुमन का शेयर्ड हाउस में राइट है। देन पार्ट 8 ऑफ टूडेज प्रेजेंटेशन, माफ करना थोड़ा प्रेजेंटेशन ज्यादा हो रहा है, लेकिन क्या मालूम है, कभी कभी ईश्वर की कृपा हो अलग हो जाती है, तो अपने आप ही कुछ थोड़ा सा अलग कुछ निकलता है। मैं पर्पजली कुछ नहीं कर रहा हूं, बस। मेरे गुरु थे इसमें शिवाजी राव भोसले, महाराष्ट्र में जब मैं लेक्चर देता था, महाराष्ट्र में बहुत लेक्चर हुए मेरे, जब मैं महाराष्ट्र में था। 2500 से ज्यादा लेक्चर्स वेबिनार हुए हैं मेरे, टीचर्स के लिए बहुत हुए हैं। 400 से ज्यादा तो मेरे वर्कशॉप हेडमास्टर्स के लिए हुए हैं, टोटल कॉलेज मैनेजमेंट के ऊपर, इंडस्ट्रीज के ऊपर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के, ऐसे बहुत सारे लेक्चर हुए हैं। तो वो लेक्चर्स में हम यही बताते थे कि जो राइट्स है, वो पर्टिकुलर सेगमेंट, जो सेगमेंट के लिए लेक्चर रहता था, वो सेगमेंट्स के राइट्स प्रॉपरली एलेबरेट करके प्रॉपरली उनको बताते थे। तो बहुत अलग अलग जगह पे फिर इनविटेशन आते थे, फिर प्रैक्टिस करते करते जितना पॉसिबल है उतना ही है। और थैंक्स टू गॉड, कोविड, कोविड के कारण बहुत आसान हो गया, वर्चुअल काफी वर्ड आ गया। मैं गॉड कोविड ही बोलूंगा, क्योंकि गॉड कोविड ने हमारा सुप्रीम कोर्ट भी वर्चुअल लाया है। इसलिए कभी कभी मैं मेरे फैमिली को मिलने के लिए पुणे जाता हूँ, तो 2-3 दिन रुक जाता हूँ, वहां से वर्चुअल हियरिंग करता हूँ, तो भी कोर्ट मेरा चलता है। तो वर्चुअल के कारण और उसके कारण अभी मुझे किधर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं भारत में या विदेश में भी जो काम करना है वो काम मेरे दिल्ली के मकान में, मैं अभी वेबिनार आज दिल्ली में बैठ के ले रहा हूँ मेरे ऑफिस में, न्यू अशोक नगर के। तो ऐसा यहाँ पे बैठ के मैं पूरे दुनिया का कोई भी लेक्चर ये सब मैनेज कर सकता हूँ। ये एक बहुत बड़ा क्या होगा, एक क्रांति हो गया है दोस्तों। इसलिए क्लाइंट भी बहुत अभी कम हो गया। मेरा बॉम्बे ऑफिस तो मैंने किराए से दे दिया, तो बॉम्बे ऑफिस मेरा वर्चुअल ही चल रहा है पूरा, क्योंकि कोई आता ही नहीं है।
सब कुछ फोन पे बात करते हैं, जरूरत भी नहीं आने की। अभी एफिडेविट भी हम व्हाट्सएप पे भेज देते हैं, वो एफिडेविट का प्रिंट आउट निकालता है, वहां से नोटराइज करता है, स्कैन करता है, पीडीएफ करके भेजता है, फिजिकल डॉक्यूमेंट स्पीड पोस्ट से आ जाता है। तो क्लाइंट को फिजिकली आने की जरूरत ही नहीं, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट रहती नहीं सुप्रीम कोर्ट में कभी। कुछ कुछ लॉयर अननेसेसरी क्लाइंट को बुला के हैरेस करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, जरूरत नहीं है। जो अच्छे लॉयर है वो नहीं करेंगे। हाँ, क्लाइंट को समझाओ, नहीं जरूरत आपको आने की, हाँ तो भी आपको आना है, मिलने के लिए देखना है, बात करना है, तो आ सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन जरूरत नहीं रहती। सो नाउ पार्ट 8, प्रॉपर्टी राइट्स आफ्टर डाइवोर्स। ये पॉइंट के ऊपर अब बात करते हैं। आफ्टर डाइवोर्स के बाद भी प्रॉपर्टी राइट क्या है? डाइवोर्स्ड वुमन मे क्लेम, शाल क्लेम नहीं है, ये शाल और मे हमारे लॉ में बहुत पावरफुल है। अगर प्रोविजन है ना, शाल ऐसा है, तो वो कंपलसरी है फिर करना। मैं बोले तो वहां पे एम्बिग्विटी है थोड़ा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। डिस्क्रिमिनेशन, क्या बोलता है, डिस्क्रिशन पावर मिल जाता है कोर्ट को। मैं अगर वर्ड है, कोर्ट को डिसीजन लेने में डिस्क्रिशन पावर मिल जाता है। भाई हम, अच्छा लगा तो पक्ष में डिसीजन लेंगे, नहीं अच्छा लगा तो विरोध में डिसीजन लेंगे। बट वेन ये यहाँ पे देखो, डाइवोर्स वुमेन मे क्लेम है, शाल क्लेम नहीं है, मे क्लेम है। तो वो क्लेम कर सकती है, दे वो क्लेम एक्सेप्ट करना नहीं करना वो कोर्ट के डिस्क्रिशन पावर पे है। अब डिस्क्रिशन को एग्जैक्टली आई डोंट नो हिंदी वर्ड एग्जैक्टली, मालूम नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन दिमाग में नहीं आ रहा है। डिस्क्रिशन पावर बोले तो एक खुद के अधिकार, खुद के अधिकार है भाई, कर सकते या नहीं कर सकते ऐसा है। तो दैट इज डिपेंड अपॉन द केस टू केस। अगर डिवोर्स वुमेन का दूसरी शादी हो गई है, या वो अर्निंग कैपेसिटी उसकी अच्छी है, तो फिर उसको मेंटेनेंस मांगने का कोई अधिकार नहीं रहेगा। ऐसे कुछ एक्सेप्शंस हैं इसको। बट ओवरऑल, divorced women may claim maintenance. Divorced women can claim alimony. Divorced women can claim residence right also. Relevant provision includes Section 25 of Hindu Marriage Act 1955, Section 125 of CRPC and Domestic Violence Act. लैंडमार्क केस इसका है, जो आपको मालूम है ऑलरेडी, रजनीश वर्सेस नेहा 2021 to SCC 324. The court established uniform guidelines for maintenance and financial disclosure. Then part 9, property rights of widows. पहले जो मैंने पार्ट 8 में कवर किया, वो प्रॉपर्टी राइट्स आफ्टर डिवोर्स का था। अब ये प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ विडो, पति जाने के बाद प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर विडो का अधिकार जो है उसके बारे में। विडो हैव स्ट्रॉन्ग इनहेरिटेंस राइट्स अंडर मॉडर्न इंडियन लॉज। विडोज हैव स्ट्रॉन्ग इनहेरिटेंस राइट्स अंडर मॉडर्न इंडियन लॉ। अंडर द हिंदू सक्सेशन एक्ट, विडो इज अ क्लास 1 हेयर एंड इनहेरिट इक्वली विथ चिल्ड्रन। अगर मैं चला जाता हूं तो मेरा एक बेटा है, एक बेटी है और पत्नी है, तो तीनों में प्रॉपर्टी का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अगर मैंने विल नहीं किया होगा तो, मेरा विल है वो बात अलग है, तो विल के अनुसार ही होगा। विल का खाली प्रोबेट करके, अगर बच्चे झगड़ने वाले अगर है तो उन्होंने प्रोबेट करके रखना चाहिए। और विल का प्रोबेट कर रहा है फिर ये करो। विल का प्रोबेट क्या होता है, जब हम विल का सेपरेट प्रोग्राम लेंगे ना तब बताएंगे आपको। अभी मैं प्रोबेट में जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा लेक्चर, तो वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। उस सेपरेट है, आप डालते रहिए यार कमेंट में, थोड़े से यूट्यूब के कमेंट में आपको कौन से विषय पे सुनने की इच्छा है, वो सब्जेक्ट डालते रहिए, वो डालते तो वो हिसाब से हमारे करंट करंट भी टॉपिक आते रहेंगे। सो इन अंडर इंडियन सक्सेशन एक्ट, विडो इज अ क्लास 1 हेयर एंड इनहेरिट इक्वली विथ चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन अगर दो है और विडो है तो तीनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ऐसा नहीं कि पति जाने के बाद पत्नी का पूरा अधिकार आ जाएगा, बिल्कुल नहीं। पति जाने के बाद विडो को इक्वल शेयर मिलेगा जितना चिल्ड्रन को मिल रहा है, क्योंकि क्लास 1 हेयर में आता है।
इसके ऊपर मेरा क्लास 1 क्लास 2 खाली क्लासिफिकेशन के ऊपर भी एक छोटा वीडियो है यूट्यूब पे, इंडियन सक्सेशन एक्ट के ऊपर, जरूर देख लेना। लैंडमार्क केस इसका है गुरुपाद खंडप्पा मुग्दम वर्सेस हीराबाई खंडप्पा मुग्दम। 1978 का केस है, 3 SCC 383। रिकॉग्नाइज विडोज शेयर इन को पास्टरी प्रॉपर्टी अपॉन पार्टीशन। और इसको बाद में 2005 के अमेंडमेंट के बाद ज्यादा स्ट्रेंथ आया है। नाउ पार्ट मैं 12-13 पार्ट में कवर करने वाला हूं, मैंने पहले ही बताया था। तो नाउ इन 10th पार्ट, जुडिशियल अप्रोच टुवर्ड्स वुमेन्स प्रॉपर्टी राइट्स। The Supreme Court of India has consistently expanded women's property rights through progressive interpretation. Key judicial trends include expanding co-pastory rights, recognize women's economic independence, protecting matrimonial residence, securing maintenance rights। ये सब कुछ जुडिशियल प्रेसिडेंट ने बहुत अच्छी तरह से किया हुआ है। नाउ पार्ट 11, इम्पैक्ट ऑन वुमेन एम्पावरमेंट। प्रॉपर्टी राइट हैव अ सिग्निफिकेंट social economic implications, economic security, ownership of property ensure financial independence, reduction in domestic violence. Studies shows women owing property face less domestic violence। अगर वुमन के पास प्रॉपर्टी है तो उसके ऊपर कम डोमेस्टिक वायलेंस होता है, ऐसा स्टडी बताती है। सोशल स्टेटस, प्रॉपर्टी ओनरशिप इंप्रूव्स बार्गेनिंग पावर विद इन फैमिलीज। देन इंटीग्रेशनल इक्वालिटी, empowered women contribute to education and health of children। सबसे एक अच्छा फॉर्मूला बताऊं आपको, जो मैंने मेरे लाइफ में अडॉप्ट किया हुआ है और मेरा बेटा भी कर रहा है, और मेरे पिता ने भी किया था ये, शायद ये पिता से ही आया हुआ होगा। लेकिन जब से हमारी शादी हुई, शादी के बाद हमने जो जो प्रॉपर्टी परचेस की, हम दोनों के नाम पे ही की, मेरे और मेरे वाइफ के नाम पे। तो हर प्रॉपर्टी में हम दोनों हिस्सेदार हैं। कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे दिल्ली की प्रॉपर्टी है, उसको आना पॉसिबल नहीं, तो मैंने ले परचेस कर लिया मेरे नाम पे। कुछ प्रॉपर्टी उसके नाम पे भी परचेस है, कुछ है, लेकिन 80% प्रॉपर्टी हमारे दोनों के नाम पे है। तो दोनों को विल करने का अधिकार है, दोनों के नाम पे सिक्योर्ड होती है। अपनी पत्नी के नाम पे अगर आप प्रॉपर्टी दोनों के नाम पे लेता है तो उसको सिक्योरिटी लगती है। ये तो कुछ कुछ मेल डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी रहते हैं ना, सब कुछ अपने ही नाम पे करते हैं, और फिर कुछ भी झगड़ा हुआ, चल निकल जा मेरे घर से, अभी क्या भी निकल जा घर से, तेरा कोई अधिकार नहीं है घर पे। पागल मत बनो भाई, रेसिडेंस अधिकार है डोमेस्टिक वायलेंस का। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट इतना अच्छा शस्त्र है ना स्त्री के हाथ में, अगर उसका दिमाग खराब हो गया ना, वो पूरा जिंदगी बर्बाद कर देगी किसी मेल का। ये तो कानून का अधिकार उसको मिला है, कानून अधिकार नहीं था तब भी स्त्री के साथ जिसने जिसने कभी पंगा लिया है, स्त्री की गलती नहीं है लेकिन पंगा लिया है, तो उसका कभी अच्छा नहीं हुआ। उसका उदाहरण उत्तम देना है तो मैं रावण का दूंगा आपको। रावण सबसे शक्तिशाली था उस जमाने में, सबसे अमीर था दुनिया में, सबसे सुंदर भी था, सबसे ज्ञानवंत भी था, बहुत अच्छा था, सब में क्वालिटी नंबर 1 की भर पड़ी थी उसमें। लेकिन एक निर्दोष स्त्री के साथ पंगा लिया, सीता माई के साथ, तो रावण का क्या हश हुआ आप सबको पता है, मुझे रामायण सुनाने की जरूरत नहीं आपको। लेकिन इसी इसके ऊपर मेरे मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि हमारे जो धर्म ग्रंथ है ना, धर्म ग्रंथ का हम अगर कानून के साथ कोई कनेक्शन डालते हैं ना, तो ये भी एक अलग इंटरप्रिटेशन का एक अलग विषय हो सकता है, जरूर हो सकता है। जैसा एक नवरात्रि में, मेरे हर नवरात्रि में उपवास रहते हैं, माउंट रहता है, और मैं हिमालय में जाता हूँ
8-9 दिन कभी बद्रीनाथ में रहूंगा, कभी इधर रहूंगा, पूरा माउंट रहता है, पूरा अलग एनालिसिस चलता है एक नवरात्रि में मैंने अग्नि पुराण पढ़ा था। मुझे किसी आरएसएस के मेरे फ्रेंड ने बताया था। मैं आरएसएस में नहीं हुआ, हाँ, मैं क्लियर करता हूँ, लेकिन मेरे फ्रेंड हर कम्युनिटी में है। तो किसी आरएसएस के फ्रेंड ने बताया था कि आप अग्नि पुराण पढ़ो, आप लॉयर है ना, तो अग्नि पुराण पढ़ो, आपको प्रॉपर्टी लॉस के बहुत अच्छे अच्छे प्रिंसिपल अग्नि पुराण में मिले। तो मुझे अग्नि पुराण में इंटरेस्ट वो प्रॉपर्टी लॉ के प्रिंसिपल के कारण है। और अग्नि पुराण मेरे आज भी लाइब्रेरी में है। इतना बढ़िया ग्रंथ है, इसमें इतना वास्ट नॉलेज है ना। तो लॉ के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन का, इसका उसका सब नॉलेज है। रामायण के जमाने में जो सोसाइटी का कोड ऑफ कंडक्ट था, वो भी अग्नि पुराण में दिया हुआ है। तो ये थोड़ा सा अगर रिलेट करते हैं ना हम कोई एंशियंट ग्रंथ और उसके लॉ के साथ अगर से रिलेट करते हैं और उसके कुछ वेबिनार लेते हैं ना, तो वो भी एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होगा। और फिर हमारे जो करंट जनरेशन है ना, जो हमारे धर्म ग्रंथ से दूर जा रहा है, ये धर्म ग्रंथ से अटैच हो जाएगा। जैसे मुझे किसी ने बताया कि प्रॉपर्टी लॉ के प्रिंसिपल आपको अग्नि पुराण में मिलेंगे, तो मुझे अग्नि पुराण में इंटरेस्ट आ गया। ये ख्याल, ये याद रखना। तो ऐसा ही है, आपको यंग जनरेशन, अभी का जनरेशन को अगर आपको अपने पुराने सिस्टम को जोड़ के रखना है, तो अभी के जनरेशन को वो एप्लीकेबल कैसा है ये बताते आना चाहिए आपको। जो एप्लीकेबल ऑलरेडी है, हमारे हर ग्रंथ एप्लीकेबल है, लेकिन वी शुड हैव दैट इनफ स्ट्रेंथ टू एक्सप्लेन दैट टू अवर करंट जनरेशन। सो नाउ आई एम टर्निंग टुवर्ड्स 12th पार्ट, challenges and future reforms। ये लास्ट पार्ट है। डिस्पाइट लीगल प्रोटेक्शन, चैलेंजेस रिमेन। कौन से चैलेंज आज भी बाकी है वुमन एम्पावरमेंट के बारे में? सोशल रेजिस्टेंस ऑफ टू डॉटर्स इनहेरिटिंग प्रॉपर्टी, जो मैंने पहले डिस्कस किया है। मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में अभी तक स्त्री का अधिकार एक्सेप्ट करने की मेंटेलिटी नहीं है, ये बननी चाहिए। इनफॉर्मल फैमिली सेटलमेंट्स इन एक्सक्लूडिंग वुमेन, lack of awareness of legal rights and litigation delays, ये challenges हैं। Possible reforms includes a recognition of matrimonial property regimes, gender neutral inheritance laws and simplified succession procedures। ये important है, ये reforms जरूरी है। Now my concluding remarks: property rights are fundamental to women's empowerment and gender equality in India. Property rights are fundamental to women's empowerment and gender equality in India. Legislative reforms such as Hindu Succession Amendment Act 2005 and progressive judgments of Supreme Court of India have significantly strengthened women's ownership rights. However, ensuring real equality required effective enforcement, awareness, and continued judicial vigilance. So, friends, that is from my side for today's this webinar. मेरे ख्याल से हमारे 5 वेबिनार के सीरीज में ये तीसरा वेबिनार हो गया है और अभी 2 वेबिनार है, लेकिन कल कुछ हमारा टाइमिंग के कंस्ट्रेंट के कारण कल हम नहीं ले पाएंगे और आगे फिर मुझे जापान जाना है, तो फिर आगे भी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए रिमेनिंग 2 पार्ट वी विल कवर ऑन संडे। तो श्रुति, नोट डाउन टाइमिंग ऑफ संडे। संडे को एक वेबिनार हम रखेंगे, जो चौथा पार्ट हमारा है वो 10 बजे रखेंगे। और 5वां पार्ट जो इसका है, जो अंतिम पार्ट होगा, ये वुमन एम्पावरमेंट का, लॉ का, इंटरनेशनल वुमेन्स डे के प्रत्येक हमारा प्रोग्राम चल रहा है। विधि सहायता जो लॉ फर्म है डॉक्टर प्रिया ठाकुर की, एडवोकेट डॉक्टर प्रिया ठाकुर की, और हमारा नानी पालकी वाला नेशनल लॉ क्लब, ये ज्वाइंट प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है। तो 5वां इसका जो रहेगा, ये परसों यानी कि 15 तारीख को ही 12 बजे रहेगा। तो थोड़ा सा आपको तकलीफ होने वाला है, डेफिनेटली हमको भी होने वाला है, क्योंकि 10 बजे का लेक्चर लगभग हम 11, 11:30 तक कवर करेंगे
आधा घंटे का गैप रहेगा, और फिर 12 बजे पांचवा पार्ट रहेगा, वो हम 1 1:30 बजे तक कंप्लीट करेंगे। तो फिर पांचों पार्ट कंप्लीट करेंगे। हो सके तो लाइव आ जाओ, बहुत अच्छा रहेगा। लाइव नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं, ये प्रोग्राम बाद में रिकॉर्ड होते हैं, हम यूट्यूब पे डालते हैं। यूट्यूब पे बाद में देखते हो, लेकिन क्या होता है बाद में यूट्यूब पे देखने में वो नहीं रहता है। फिर थोड़ा आज देखा, थोड़ा बाद में देखा, आधा ही देखा, बाद में छोड़ दिया। फिर कुछ कुछ अच्छे अच्छी जगह पे जो एक थोड़ा सा मोटिवेशनल, एक ईश्वर के दया से जो एक प्रेरणादायी भाषण हो जाता है, वो मिस हो जाता है। वो उतना बाद में लाइव में रिकॉर्डेड में उतना मजा नहीं आता है। इसलिए जहां तक लाइव की सवाल है, तो लाइव ही अटेंड करने की कोशिश कीजिए, ऐसा मेरा आपको रिक्वेस्ट है। लेट मी अनम्यूट द माइक ऑफ Shruti, then she will conclude this today's program. Shruti, you can unmute yourself. Sir, Advocate P.K. Sasdeva want to ask some question. Hmm. First question is, what is the right of wife in joint property in case of divorce on the ground of adultery by her and no direct contribution by wife towards property? डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन नहीं है, डाइवोर्स हुआ है और अडल्ट्री अगर वुमन के पार्ट में है तो उसका कोई राइट नहीं बनेगा। ओके। लेकिन ये जो इन्होंने बताया उसके ऊपर मेरा इंटरप्रिटेशन है। एक्चुअली फैक्ट केस के कभी कभी अलग होते हैं, लोग कुछ हमको कम भी बताते हैं। तो ये कभी एक अच्छे लॉयर को आप ये बता के प्रॉपर गाइड लेके ही चलो, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन अडल्ट्री पार्ट अगर वुमन के तरफ से है तो फिर वुमन वो राइट खो देती है, और उसका अगर कंट्रीब्यूशन भी नहीं है उसमें तो फिर उसका कोई राइट नहीं बनेगा। लेकिन अडल्ट्री पार्ट अगर हस्बैंड के ओर से है, हस्बैंड अडल्ट्री में गया है, उसके कारण वाइफ को डिवोर्स हुआ है, then wife can claim that rights, or even though she don't have any contribution है। याद रखना, मैंने इतना जो एक्सप्लेन किया है, इसमें वुमन का कंट्रीब्यूशन परचेस करने के लिए चाहिए ऐसा नहीं है। वुमन का रेसिडेंस राइट है, वुमन का इनहेरिटेंस राइट है, वुमन के सब राइट्स है, वो कोई इशू नहीं है, वेदर सी हैव द कंट्रीब्यूटरी वैल्यू इन दैट और नो। और आप बताओ क्या, वुमन का कंट्रीब्यूशन रहता ही रहता है। ठीक है, वो अर्निंग नहीं करती है लेकिन वो घर तो संभालती है। घर संभालने वाली औरत का तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, वर्किंग वुमन से भी ज्यादा कंट्रीब्यूशन हाउस वाइफ का होता है। क्योंकि वो पूरा की पूरा उसका पर्सनल मोटो, पर्सनल क्या बोलते हैं, उसके सपने सैक्रिफाइस करके पूरे कुटुंब को समय पे सब कुछ अवेलेबल करके देती है। इसलिए हम कैसे बोल सकते हैं इसको कि इसका कंट्रीब्यूशन नहीं है। आने दो, मेरे पास एक आधा केस ऐसा, तो ऐसा केस हम सुप्रीम कोर्ट में इंटरप्रेट करेंगे, ऐसा हम प्रॉपर जजमेंट निकालेंगे सुप्रीम कोर्ट से कि जो हिस्टोरिकल हो। जैसे अभी तक हमारे काफी हिस्टोरिकल जजमेंट निकले हैं कि जो भारत में प्रेसिडेंट बोल के लोग यूज करते हैं, बराबर है, तो ऐसे भी निकालेंगे। तो ये उनके है। और मेरे ख्याल से और एक क्वेश्चन उनका है, व्हाट अबाउट द राइट ऑफ सीनियर सिटीजन टू लिव पीसफुली अवे फ्रॉम मिस्चीवियस डॉटर इन लॉ। तो डेफिनेटली है, सीनियर सिटीजन को राइट है। और डॉटर इन लॉ अगर मिसबिहेव बिहेवियर करती है और ये अगर प्रूव कर लेते हैं कोर्ट में, तो डेफिनेटली सीनियर सिटीजन को एक अच्छा अधिकार है, डेफिनेटली है। सीनियर नोट डाउन दिस पॉइंट, ये क्या नाम इनका, सचदेवा एडवोकेट, उनको मेरे ओर से धन्यवाद दीजिए कि ऐसे अच्छे अच्छे सवाल पूछने के कारण अच्छे अच्छे दिमाग में आइडिया आते हैं। तो ये सीनियर सिटीजन एक्ट के ऊपर भी हमने एक सेपरेट प्रोग्राम लेना है। और जैसा वुमन अवेयरनेस की जरूरत है, वैसा सीनियर सिटीजन एक्ट की जो सीनियर अभी है 60 के आगे जो लोग हैं भारत में, उनको जरूरत है। और जो 55 के आगे है उनको भी जरूरत है, क्योंकि वो 4 5 साल के बाद वो 60 के आगे जाने वाला है। इसलिए ये सीनियर सिटीजन एक्ट के ऊपर अगर एक आधा कोई प्रोग्राम आप लोग मैनेज करते हैं, मेरे एसोसिएट लोग श्रुति, कृति है, मनोज है, एक अगर मैनेज करते हैं, तो डेफिनेटली हम उसके ऊपर भी फोकस करके करेंगे। और सचदेवा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर कोई और सीरीज लेना है, कुछ करना है,
तो बता देना, और उसमें आपको मेरे साथ आपको आपको भी कुछ अगर लगता है कि सीरीज लिख ले और सोमानी सर गाइडेंस करे, उसमें मैं खुद भी कुछ गाइडेंस कर सकता हूँ एज एडवोकेट, यस, मुझे बता देना। तो कुछ पार्ट आप भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, और ये सब कुछ हमारे यूट्यूब चैनल पे आ जाता है, और सब कुछ उसका उसका शेयरिंग भी लोगों को हो जाता है। तो ऑलवेज ऑल लॉयर्स आर ऑलवेज इनवाइटेड to get contribution in our this process of दिस नानी पालिकेवाला नेशनल लॉ क्लब की जो प्रोसेस हमारी चल रही है। नानी पालिकेवाला मेरे आदर्श है, मेरे गुरु है, उनके नाम पे हमने ये नेशनल लॉ क्लब खोला है, और इसके हमारे बहुत अलग अलग ग्रुप है। बहुत पावरफुली ये काम चल रहा है। भारत में ऐसा एक भी शहर नहीं है जहाँ पे हमारे नानी पालिकेवाला लॉ क्लब के मेंबर नहीं है, ये याद रखना। बहुत अच्छा काम इसका चल रहा है। देन श्रुति आगे। अरे आपका आवाज बंद हो गया। एक मिनट, वापस मुझे आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ, यस, बोलो। Sir, SK Singer हम्म। have one question. Daughter having relinquished her share in an MOU, can she claim as per 2005 Act? रीड इट अगेन। हाँ, डॉटर हैविंग रिलिंक्विश्ड हर शेयर इन एन एबीयू कैन नॉट क्लेम हर राइट एज पर 2005 एक्ट। सी कैन नॉट क्लेम। एक बार रिलिंक्विश कर देते ना राइट आपका, ओके, और वो रजिस्टर्ड अगर हाँ, दैट डॉक्यूमेंट शुड बी रजिस्टर्ड। एमओयू अगर रजिस्टर्ड है तो उसको स्टैच्यूटरी वैल्यू है। रजिस्टर्ड नहीं है तो में आएगा, शाल नहीं आएगा। फिर वो जुडिशियल इनके क्या बोलते हैं उसको, जज के इच्छा के अनुसार चलेगा। तो वो जज के ऊपर छोड़ना पड़ेगा। लेकिन एमओयू अगर रजिस्टर्ड है और सी हैज रिलिंक्विश्ड, उसने उसका अधिकार, रिलिंक्विश का मतलब होता है छोड़ देना, उसने अगर उसका अधिकार छोड़ दिया है, तो एक बार छोड़ दिया तो फिर वापस वो क्लेम नहीं कर सकती है। यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ एस्टोपेल लगता है एज पर एविडेंस है। तो फिर ये है, तो ये उनका जवाब है। सो नाउ कंक्लूड। Yes. As we conclude this enriching webinar on property rights for women in India, I would like to extend my heartfelt gratitude to our esteemed speaker, Advocate Jayaprakash Sumani, for sharing his vast experience and insight on this crucial topic. Your presence has undoubtedly elevated the quality of our discussion, and we are truly grateful for your time and effort. Property right, a vital aspect of women's empowerment, and today's discussion has shed light on the various laws and provisions that protect women's rights to property in India, from ancestral property to marital property. We have explored the key aspect of property rights for women. I would also like to thank Vidik Sahayata and Nani Palkiwala National Law Club for organizing this webinar series. Your tireless efforts in promoting legal awareness and excellence are truly commendable, and we are appreciate your dedication to empowering women through law. And to all the participants, thank you for being the integral part of this webinar. Your active engagement and enthusiasm have made this event a hug success. Thank you so much. बाय। Bye.